Hello everyone. So in today's video, I am going to share with you all the journey of my fourth attempt at UPSC, the mistakes that I think I have committed and the learnings that you all can have from my mistakes. First of all, we all are in our 20s while appearing for this UPSC exam. So 20s are very prime to each one of us. And this life is very short to make mistakes and learn from your mistakes. So it is better when you actually learn from the mistakes of others. Hopefully, I think from my mistakes, many of you will be able to learn that when you can skip the attempt for the UPSC and what you all need to sit for the UPSC exam and how you can prepare for it. So let's start with the same. One more thing is that previously I have shared the three videos on the same context, that the journey of my attempts. I had shared my first attempt, the mistakes and learnings, second and third attempt as well. You can go and check those videos as well. So now starting with the fourth attempt, the journey of my fourth attempt at UPSC. First of all, post the prelims result of my third attempt, that was a very low moment for me, and I had decided that I am going to prepare for some plan B job. So the time period from the June to October, that is the peak time period for preparing for the plan B jobs. अब इस बीच में बहुत सारे बैंकिंग जॉब्स भी होते हैं और जो आपकी यूपीएससी के अदर एग्जाम्स होते हैं लाइक सीडीएस ईपीएफओ वो भी कंडक्ट करवाए जाते हैं. तो सबसे पहले तो जुलाई में इट वाज ईपीएफओ. आई अपेयर्ड फॉर द यूपीएससी ईपीएफओ. फॉर दिस आई कुड नॉट प्रिपेयर मच क्योंकि वो जो थर्ड अटेम्प्ट के शौक वाला फेज होता है ये वो वाला टाइम था and I could not qualify it. Then next September में it was CDS. CDS was conducted. So it is a combined defense service exam. I cleared the UPSC CDS 2 2023. Then October में I appeared for the RBI Grade B exam and I could not clear that exam. अब सी आइडियली जो जून टू सितंबर का आपका टाइम होता है यू शुड प्रिपेयर फॉर द मेंस. ठीक है, I did prepare for the mains. Yes, I prepared for the optional and GS paper 1 and 3. But what about GS paper 2 and GS paper 4? So, जो ideal mains की preparation का time होता है वो मैंने यहाँ पे plan B jobs के लिए दे दिया, जबकि पता था कि मुझे अपने next attempt में भी फिर से बैठना है. So, this was one major mistake. So, अक्टूबर में जब ये रिजल्ट आया CDS का, एंड दिस वॉज समथिंग लाइक होप इन डिस्पेयर फॉर मी कि एक एग्ज़ाम क्लियर हुआ. तो सितंबर 2024 पे फिर जो नवंबर में नोटिफिकेशन आया था HCS एग्ज़ाम का, और जो 17 ऑफ फरवरी 2024 पे जो HCS का एग्ज़ाम वो कंडक्ट हुआ, उसका प्रीलिम्स हुआ. ठीक है, तो अक्टूबर के तुरंत बाद जब पता चला कि एग्ज़ाम होने वाला है HCS का, तो उसके प्रीलिम्स की तैयारी के लिए यहाँ से अक्टूबर से तैयारी शुरू हो गई. ठीक है, तो अब देखो अक्टूबर से दिसंबर के भी जो टाइम था बीच का, उसके बीच भी मैं प्रीलिम्स के लिए पढ़ रही थी फॉर द हरियाणा पीसीएस. अगेन उसकी भी एक अलग स्टोरी है कि हरियाणा पीसीएस पे भी वही सेम पेयर 1 पेयर 2 वाला पैटर्न फॉलो हुआ था एंड आई कुड नॉट क्लियर दैट एज वेल. ठीक है, तो वो भी एक डिस्पेयर मोमेंट था. नेक्स्ट फरवरी से अप्रैल 2024 तक, फरवरी 2024 से अप्रैल 2024 के बीच आई शिफ्टेड टू माय होम टाउन, क्योंकि जामिया का जो सेशन होता है वो फरवरी में ख़त्म हो जाता है. तो फरवरी में आई शिफ्टेड टू माय होम टाउन एंड फॉर 2 months आई वाज देयर इन माय होम. इस बीच एसएसबी हुआ था सीडीएस का भोपाल में. ठीक है, आई वेंट देयर. नेक्स्ट अभी जब फरवरी में फिर से जामिया का एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ एंड आई गोट री इंडक्टेड इन द जामिया इन अप्रैल, और मई में हमारे एग्ज़ाम था. ठीक है, अब यहाँ पे अप्रैल में आई वेंट टू दिस एसएसबी एंड स्क्रीनिंग टेस्ट में अगेन आई वाज स्क्रीन आउट कैंडिडेट इन द एसएसबी. तो अगेन वो एक लो मोमेंट था और भी बहुत सारे डेवलपमेंट्स जो थी वो चल रही थी एंड दैट वाज अ वेरी लो मोमेंट फॉर मी. And actually I was very mentally tired of those failures and I was not able to
pick myself up and prepare for this exam again. So अभी जब मई में एग्जाम था and anyway I had to sit in that exam and परफॉर्मेंस इट वॉज क्वाइट गुड एज वेल, क्वाइट गुड. और मेरे लिए तो वो बैड ही है, बट फॉर अदर्स इट इज़ लाइक क्वाइट गुड. 90.26 I have got the score according to the some answer keys like Vision and Shankar IS. But anyway I could not clear the prelims exam in 2024. Academic analysis की अगर हम बात करें तो prelims performance हम देखते हैं सबसे पहले. तो I attempted the 97 questions. इस बार प्रीलिम्स फ्रैक्चुअल था, ठीक है. आई अटेम्प्टेड 97 क्वेश्चन जिसमें से 58 आई गोट करेक्ट एंड 39 इनकरेक्ट, और स्कोर बन रहा है अराउंड 90.26. अब ये जो मेरा प्रीलिम्स एनालिसिस है वो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी वो पूरा अपलोड किया है अलोंग विद द स्कैन्ड कॉपी ऑफ माई प्रीलिम्स पेपर. You can go and check the paper on my telegram channel. The link of that I will paste in the description. Next, अब एग्जाम हॉल की बात करते हैं. एग्जाम हॉल में आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट. वाई? बिकॉज मैंने देखे बहुत सारे पॉलिटिकल क्वेश्चंस थे और ऐसे क्वेश्चंस जो मुझे लगता था कि प्रीलिम्स इस बार इजी आया है और मेरा इजीली क्वालिफाई हो जाएगा. बट यहाँ पे एक मैंने बहुत बड़ी गलती करी, मुझे लगता है कि मैंने उन क्वेश्चंस में भी गेस किया जो फैक्चुअल क्वेश्चंस थे. फैक्चुअल क्वेश्चन में अगर आप 50-50 में भी गेस लेते हैं, इनकेस अगर आपका लक बहुत अच्छा है तो ही आपका वो करेक्ट हो जाता है, अदरवाइज इनकरेक्ट होने के चांसेस रहते हैं. और वही मेरे साथ हुआ कि बहुत सारे नेगेटिव मार्किंग में मार्क्स जो है कट गए वो. अब सिलेबस की अगर मैं बात करूँ तो पॉलिटी के लिए मैंने लक्ष्मीकांत अच्छे से पढ़ा था, और जो हमारे ओनली IAS के जो वो नोट्स आते हैं, नॉट प्रहार बट उड़ान मटेरियल, आई हैड ऑल्सो रेड दोज मटेरियल फॉर द पॉलिटी, ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री वाला सेक्शंस, ठीक है. ज्योग्राफी के लिए आई डिड NCERTs प्लस उड़ान वाला मटेरियल. नेक्स्ट, हिस्ट्री के लिए आई डिड ल्यूसेंट, आई डिड पूनम दलाल दहिया. इट वॉज अ वन टाइम रेड पूनम दलाल दहिया. नेक्स्ट, नीरज राव सर की मैंने क्लासेस कर ली थी. इनकी जो क्लासेस मुझे एक लिंक मिल गया था टेलीग्राम चैनल से ही, तो उनकी क्लासेस मैंने वहाँ से की थी. और द थिंग इज कि एंशियंट, मिडीवल, आर्ट एंड कल्चर और मॉडर्न हिस्ट्री, ये सारी क्लासेस मैंने सर की. तो अब देखो वो करने में मेरे को 1.5 मंथ नियरली लगा, क्योंकि क्लासेस वो एंशियंट के अराउंड 15 क्लासेस है, मिडीवल के अराउंड 7 क्लासेस है, देन अगेन मॉडर्न के 13 to 14 क्लासेस है, देन अगेन आर्ट एंड कल्चर की 7 क्लासेस है. तो अब देखो इतनी सारी क्लासेस करने का कोई फायदा नहीं होता है. एनीवे अगर आप किसी भी टीचर के नोट्स कर रहे हो, आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग एनीवन, और नीरज राव सर के नोट्स से मुझे काफ़ी हेल्प मिली है हिस्ट्री में. बट द थिंग इज कि एनीवे अगर आप किसी भी टीचर को फॉलो कर रहे हो, किसी भी टीचर की क्लासेस कर रहे हो, स्टिल आपको NCERTs और बेसिक बुक्स हिस्ट्री के लिए पढ़नी पड़ती हैं, क्योंकि हिस्ट्री में इतना डेटा और इतना फैक्ट है वो आपको किसी के भी नोट्स में इजीली नहीं मिल सकता है. नेक्स्ट, इकोनॉमिक्स के लिए आई डिड मृणाल सर के नोट्स, और इस बार मैंने ठीक से रिवाइज नहीं किया था क्योंकि मैंने पहले एक बार अच्छे से पढ़ा था, तो आई वॉज कॉन्फिडेंट कि इकोनॉमिक्स को बाद में करेंगे, और बाद में मैं नहीं कर पाई ठीक से. एनवायरनमेंट के लिए आई डिड अच्छे से, मैंने शिविन सर के जो नोट्स आते हैं एनवायरनमेंट के वो मैंने पढ़े थे. नेक्स्ट, साइंस एंड टेक के लिए शिविन सर की जो PPTs होती है वो मैंने पढ़ी थी, लेकिन मैंने एक इनफ जो रिवीजन जो होता है वो नहीं किया था यहाँ पे, ठीक है. अभी ये 2 जो सब्जेक्ट है वो मैंने ठीक से नहीं किए थे, और साइंस में ही मेरे मेजरली क्वेश्चन गलत है, 3 से 4 क्वेश्चन गलत है. देन करंट अफेयर के लिए मैंने PT 365 रीड किया था. अब बात करते हैं गलतियों की और उनसे लर्निंग्स आप क्या ले सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, नॉट अटेम्प्टिंग द इनफ मॉक्स. अब इस ईयर के प्रीलिम्स में बेरिंग 3-4 मॉक टेस्ट आई डिड नॉट अटेम्प्ट एनी ऑफ द मॉक्स. इसमें से भी 2 हिस्ट्री के सेक्शनल टेस्ट थे और 2 फोरम के जो FLTs आते हैं वो मैंने अटेम्प्ट किए थे. 2 इसमें स्कोर 75 to 80 था, बट स्टिल मुझे मॉक्स अटेम्प्ट करने चाहिए थे. बट द थिंग इज कि यहाँ पे मुझे लगता है मेरी भी गलती नहीं है, क्योंकि हर कोई कहता है मॉक्स को इतना नहीं करना चाहिए. जब आप एनीवे आप सीनियर हो जाते हो, 2-3 अटेम्प्ट जब आप दे लेते हो, तब आपको पता चलता है कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस करना है एज कम्पेयर टू द मॉक्स, क्योंकि मॉक्स
कोचिंग वाले कैसे बनाते हैं, अब देखो 2023 में कौन सा पैटर्न था, पेयर 1 पेयर 2 वाले क्वेश्चंस का पैटर्न था यूपीएससी का, ठीक है। अब कोचिंग्स ने जो बॉक्स बनाए थे उनमें भी सेम पैटर्न को फॉलो करके नोट्स बनाए थे, इसीलिए ताकि अगर कम स्कोर आए उससे अंडर कॉन्फिडेंट ना हो हम, उसी को अवॉइड करने के लिए हम मॉक्स को ही अवॉइड करते हैं, ठीक है। वो मुझे लगता है एक मेजर गलती मेरी तरफ से भी रही है, ठीक है। नेक्स्ट, ब्लाइंडली अडेयरिंग टू द स्ट्रेटेजी ऑफ अटेम्प्टिंग 90+ क्वेश्चंस इन द प्रीलिम्स। अब सबसे बड़ी बात मुझे क्या लगता है, ये जो लर्निंग मेरी इस अटेम्प्ट से रही है कि आप जब पेपर में बैठते हैं ना, अकॉर्डिंगली आप पेपर को एनालाइज करें और तब आप डिसाइड करें कि आपको कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। अदरवाइज हर बार ये 90+ की जो स्ट्रेटजी होती है वो काम नहीं करती है, क्योंकि जो हमारे जो पेपर जो होता है हमारा वेरी करता है। अब लेट्स से मॉक से अगर मैं किसी ने एनालाइज किया कि 90+ क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, लेकिन अगर वो एक्चुअल पेपर में जा रहा है, एक्चुअल पेपर में फैक्चुअल क्वेश्चन है, अगर वो फिर भी 90+ ही अटेम्प्ट करेगा, दैट मीन्स कि 30 से 40 क्वेश्चन उस पर्सन को शॉर्ट आते होंगे, ठीक है, लेकिन बाकी क्वेश्चन में गेस मार्क लेना होगा। गेस मार्क और फैक्चुअल क्वेश्चन में गलत होने के चांस ज्यादा रहते हैं, ठीक है। इसीलिए जो 90+ की जो अटेम्प्ट करने की स्ट्रेटजी रहती है वो हमेशा ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना चाहिए उसको। नेक्स्ट, फोकसिंग ऑन द प्लान बी वाइल प्रिपेयरिंग फॉर द नेक्स्ट अटेम्प्ट। अब जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो जुलाई 2023 से दिसंबर एनीवे फरवरी 24 तक आई वाज फोकसिंग ऑन प्लान बी, ठीक है। अब इस बीच में एचसीएस का एग्जाम था, इस बीच में सीडीएस का एग्जाम था, इस बीच में आरबीआई का एग्जाम था, और ये जो ईपीएफओ का एग्जाम था, ये सब एग्जाम्स थे और मैं इन पे फोकस कर रही थी। और ये जो प्राइम टाइम होता है मेंस के लिए, ये मैंने अपना अवॉइड कर दिया था। तो मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा भी मेंस के लिए, दैट मीन्स एफिशिएंसी थी मेंस के लिए भी, बट द थिंग इज कि ये जो प्लान बी में मैंने फोकस किया और उस पर भी हम हाफ हार्टेडली फोकस करते हैं। हाफ हार्टेडली क्यों फोकस करते हैं? क्योंकि मन नहीं होता। जब एनीवे आप 2-3 अटेम्प्ट दे देते हो यूपीएससी के लिए, तो आप अगर किसी प्लान बी जॉब के लिए प्रिपेयर करते हो तो वो बहुत मुश्किल होता है आपके लिए। पता नहीं उसका क्या रीजन है एक। और नेक्स्ट, ये जो प्लान बी की जॉब्स होती है उसके लिए एक अलग स्ट्रेटजी होती है। ये एक मिथ होता है कि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो आप किसी भी एग्जाम को इजीली क्वालिफाई कर लेते हो। नहीं, हर एक एग्जाम की अप्रोच और स्ट्रेटजी डिफरेंट होती है। नेक्स्ट, अब ये उसी से लिंक्ड है कि या तो आप अपनी जो प्लान बी जॉब है उसको सिक्योर करने के बाद प्रिपरेशन में आए, या फिर आपको अटेम्प्ट को स्किप कर देना अगर आप प्लान बी जॉब पे फोकस कर रहे हो। अब व्हाट आई कुड हैव डन इज, मैं 24 का अटेम्प्ट स्किप कर सकती थी, ठीक है, क्योंकि जब मुझे पता था, और एनीवे उस फेज में आपको नहीं पता होता है, मुझे नहीं पता था कि मैंने अपना इतना टाइम वेस्ट कर दिया प्लान बी के लिए, इसलिए मेरे को ये अटेम्प्ट स्किप करना चाहिए। पर नहीं, आई सेट फॉर द अटेम्प्ट एंड आई कमिटेड अ मेजर मिस्टेक। अब फिर उसके बाद क्या होता है कि ये जो फेलियर का बोझ होता है ना, आप उसके नीचे दबते चले जाते हो। नेक्स्ट, आई वॉज ऑल्सो थिंकिंग टू स्किप द अटेम्प्ट एंड, लेकिन जो एक मुश्किल होती है ना कि आप हमेशा सोचते रहते हो कि इस बार लिस्ट में आपका नाम आ ही जाएगा, और आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होता है तो आप कॉन्फिडेंट हो जाते हो कि हाँ इस बार तो हो ही जाएगा एग्जाम क्लियर। तो वो जो एक ट्रैप होता है ना, उसकी वजह से ही बार बार आप प्रीलिम्स में बैठते हो और फिर वो फेलियर आपको फेस करना पड़ता है। नेक्स्ट, अगर मैं आपसे अपनी लर्निंग शेयर करूं तो अगर मुझे फिर से अटेम्प्ट के लिए बैठना हो तो मैं तब बैठूंगी व्हेन आई विल बी श्योर अबाउट कि मैंने कंटेंट को इनफ रिवीजन किया है, मैंने कंटेंट को इनफ रिवाइज किया है। नेक्स्ट, मैंने ठीक से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज किया है, मैंने इनफ मॉक्स अटेम्प्ट किया। एटलीस्ट 30 to 40 अटेम्प्ट 40 मॉक्स आपको अटेम्प्ट करने चाहिए, जिसमें से आपके 12 to 15 एटलीस्ट आपको फुल लेंथ टेस्ट अटेम्प्ट करने चाहिए। और अगर किसी सब्जेक्ट में आप अंडर कॉन्फिडेंट है तो उसके लिए आपको सेक्शनल टेस्ट अटेम्प्ट करने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, प्रायोरिटाइजिंग स्टडीज एंड इग्नोरिंग ऑल अदर इश्यूज। अब सबसे पहली बात, हर किसी की जर्नी डिफरेंट होती है, हर किसी के लिए चैलेंजेस डिफरेंट होते हैं। अब मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपके वो चैलेंजेस इतने बड़े हैं कि वो आपकी जो स्टडी एफिशिएंसी को हैम्पर कर रहे हैं, या तो आप पहले उनको ही सोल्व करो, ठीक है, और या फिर अपनी स्टडीज को प्रायोरिटाइज करो और उनको इतना इग्नोर करो कि आप पे उनका अफेक्ट ही ना हो। बट द थिंग इज कि अगर
कुछ चल रहा होता है तो उसका आप पे इम्पैक्ट होता है और वो आपके स्टडी को भी इम्पैक्ट करता है, वेदर इट इज फेमिलियल इशू और एनी हेल्थ चैलेंजेस और समथिंग एल्स. सो दैट इज वाई कि अपनी प्रॉब्लम आपको खत्म करे उससे पहले आप अपनी प्रॉब्लम को खत्म कर दो. नेक्स्ट, अब मुझे क्या लगता है कि अगर मुझे अब पढ़ाई करने के लिए फर्स्ट अटेम्प्ट में बैठना होता तो आई वुड टेक इट एज अ जॉब. जॉब में क्यों? अब सबसे पहली बात, जब कोई जॉब कर रहा होता है कोई भी इंसान, तो एक मोटिवेशन होता है उसका. क्या? उसके लिए एक सैलरी, एक मोटिवेशन होता है. लेकिन जब हम पढ़ रहे होते हैं तो उसमें ज्यादा फोकस और कंसंट्रेशन की जरूरत पड़ती है. जब हम पढ़ाई सोच के इस चीज को करते हैं ना कि हमें पढ़ना है, तो मैक्सिमम चांसेस है कि जो आपके स्ट्रगल्स हैं आप उनको भी देखोगे और उनकी वजह से आपकी एफिशिएंसी भी हैम्पर होगी. लेकिन जब आप जॉब करते हैं ना, एनीवे आप सब चीज़ों को भूल के आप उतना काम ज़रूर करते हो जो आपके टारगेट्स होते हैं, ठीक है. और वो टारगेट्स क्यों पूरे करते हो? क्योंकि उसकी वजह से ही आपको सैलरी मिलती है. तो अब ये जो वहाँ पे क्या होता है, जॉब में आपको इमीडिएट पे ऑफ होता है, लेकिन स्टडीज़ में क्या होता है आपको बाद में, और ये एक लॉन्ग टर्म का पे ऑफ होता है. दैट इज़ वाई आई विल से कि एक जॉब की तरह स्टडीज़ को अपना लेना चाहिए, हमें लगता है जब अटेम्प्ट हम दे रहे होते हैं, क्योंकि 20s एनीवे हमारा बहुत प्राइम होता है. और अगर हम इस टाइम को, अपने अटेम्प्ट्स को यूं गवाते रहेंगे तो वो एनीवे हमारा टाइम भी जा रहा है और हमारे हाथ में भी कुछ नहीं आ रहा है. नेक्स्ट, अब फेलिंग अगेन एंड अगेन मेक्स यू अंडर कॉन्फिडेंट. दैट इज वाई आई से इट वेरी मच. और मैं इतना इस बात को एम्फसाइज करती हूँ कि अगर आप मेंटली रेडी नहीं है, अगर आप ठीक से रेडी नहीं है, तो आप अपना अटेम्प्ट ना ही दें, क्योंकि एक ऐसा ट्रैप जिसमें आप फंस जाएंगे और फिर मुश्किल वो इतनी होती है कि आप खुद अंडर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं. नेक्स्ट, अगेन अगर आप रेडी नहीं है एग्जाम के लिए, ठीक है, और फिर भी आप एग्जाम में बैठ रहे हैं, तो आपको फेलियर फेस करने के लिए रेडी रहना चाहिए, ठीक है. तो वो एक डेफिनेट फेलियर मिलता है अगर आप प्रिपेयर्ड नहीं है और आप फिर भी अटेम्प्ट में बैठ रहे हैं. जो गलतियां मैंने करी है, मैंने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में भी, मैंने अपने सेकंड अटेम्प्ट में भी यही गलती करी है और मैंने अपने फोर्थ अटेम्प्ट में भी यही गलती करी है, ठीक है. तो तीनों बार मुझे लगता है कि ये मैंने गलती की है कि इन अटेम्प्ट में मुझे नहीं बैठना चाहिए था, जब मुझे पता था दैट आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड वेल फॉर दैट. नेक्स्ट, अब कुछ लोगों में क्या होता है कि वो पढ़ते भी हैं, वो फिर भी फेल हो जाते हैं. क्यों? क्योंकि कुछ कुछ लोगों के लिए लक फैक्टर काम नहीं करता है. अब लक फैक्टर कैसे आपका खराब हो जाता है? अगर आप पढ़ रहे हो, ठीक है, कोई मेजर हेल्थ चैलेंज आ गया, नेक्स्ट अगर कोई फैमिली में कोई इशू आ गया, नेक्स्ट फाइनेंशियल कोई चैलेंजेस हो गए, अब यहाँ पे ये लक फैक्टर आपका मैटर करता है. मुझे ऐसा लगता है कि बहुत लोग जो क्वालिफाई कर जाते हैं, आप उनसे अगर पूछेंगे कि कभी कभी ऐसा होता है कि लक पूरा अलाइन हो जाता है आपका, तब जाके आपका एग्जाम क्वालिफाई होता है, ठीक है. नेक्स्ट, अब कुछ लोगों के लिए कंसिस्टेंसी चैलेंज होता है. वो क्यों होता है? क्योंकि उन लोगों ने अपनी लाइफ में, और वो लोग इतने मतलब कूल, इतने चिल होते हैं कि वो दे लाइक पार्टिंग, दे लाइक गोइंग आउट, तो इसीलिए उन लोगों के लिए कंसिस्टेंसी और एक जगह बैठ के पढ़ना चैलेंज होता है. और कुछ लोगों के लिए और भी अदर चैलेंजेस होते हैं. नेक्स्ट, और अगेन आई विल से कि डू नॉट हेजिटेट टू स्टेप बैक व्हेन यू आर नॉट रेडी. अब अगेन ये जो हमारा 20s का टाइम है, ये बहुत प्रीशियस है, ठीक है. अब हमें अपने आप को एक ऐसे ट्रैप में उलझा के नहीं रखना चाहिए कि हमें पता है ना तो हम स्टेप बैक कर पा रहे और ना ही हम आगे बढ़ के इस एग्जाम को क्लियर कर पा रहे. दैट मीन्स प्रिपेयर वेल बिफोर यू सिट इन द अटेम्प्ट. एनीवे अगर आप अपने अटेम्प्ट को देते जा रहे हैं, वो आपके अटेम्प्ट भी खत्म हो रहे हैं और वो आपका लाइफ का टाइम भी जा रहा है. और अगर आप एंड ऑफ द ईयर आप देखेंगे, जब आपका रिजल्ट आएगा, फिर आप पीछे मुड़ के देखेंगे कि आप 10 से 12 घंटे रोज बैठ भी रहे थे, फिर भी आप एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं. तो वो जो रिग्रेट होता है वो बहुत बुरा होता है. नेक्स्ट, हैविंग द राइट डायरेक्शन इज नेसेसरी एट ईच एंड एवरी स्टेप ऑफ दिस एग्जाम. अब ये ऐसा क्यों है? क्योंकि देखो, पढ़ना सबको पता है कि कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, बट द थिंग इज कि हर जो स्टेप होता है इस एग्जाम का, वेदर इट इज प्रीवियस क्वेश्चंस का एनालिसिस या फिर वो मेंस के लिए कैसे आपको तैयारी करनी है, हर एक स्टेप पे आपको एक मेंटर की, एक गाइड की रिक्वायरमेंट होती है. तो दैट इज वाई अगर आप किसी कोचिंग को भी ज्वाइन कर रहे हैं ना, तो एटलीस्ट मेक श्योर कि वो आपको एक मेंटर प्रोवाइड करवा रहे हैं, जिससे आप किसी भी टाइम आप कांटेक्ट कर सकते हैं. कि अगर आपकी जो
छोटी छोटी बड़ी बड़ी जितनी भी क्यूरीज होती है आपकी, अगर वो क्यूरीज रिजोल्व नहीं होती है और अगर आपको पता नहीं चलता है कि आप सही डायरेक्शन में चल रहे हैं कि नहीं, तो वो एक एनीवे एक ट्रैप हो जाता है। अब आप लेफ्ट आउट भी फील करते रहते हैं, ठीक है, और ना आप फिर उसके बारे में किसी से बात कर पाते हैं, थिंकिंग कि सामने वाला आपको जज करेगा कि आप ठीक से पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो। दैट इज वाई हैविंग द राइट डायरेक्शन इज वेरी नेसेसरी। उसके लिए अगर आप किसी कोचिंग में जा रहे हैं तो आप किसी मेंटर से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, या फिर एनी आपके पास जो भी पर्सनलाइज मेंटर्स होते हैं इन कोचिंग में जाके आप बात कर सकते हैं एनी थ्रू इधर या फिर फोन कॉल या फिर मेल के थ्रू आप उनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। दैट इज वाई कि किसी भी एक पर्सन को, किसी भी एक मेंटर को आपको फाइंड आउट करना जरूरी है, to whom you can trust on regarding this preparation journey. So lastly, I will say whatever I have shared with you all in this video was not something that I was about to gain sympathy from, ठीक है, और मेरा ऐसा कोई मकसद था नहीं। और मैंने अभी ये जो 4 वीडियोस आपसे शेयर करी है, मेरी 4 जर्नीज, ये जो 4 अटेम्प्ट की जर्नी के बारे में, और जो गलतियां हैं मुझे लगता है कि मैंने की, और लर्निंग्स। अब जब मैं इनिशियली, जैसे ही मेरे 4th अटेम्प्ट का रिजल्ट आया, वो हर अटेम्प्ट के बाद आपको जब वो सेटबैक आपको फेस करना पड़ता है तो आप लो फील करते हो। बट द थिंग इज, जब 4th अटेम्प्ट के बाद 1-2 महीने बीतने के बाद जब मैंने खुद से सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करना शुरू किया, तब मुझे लगा कि जो गलतियां मुझे लगता है कि वो हुई है। सबसे पहली बात, फर्स्ट और सेकेंड अटेम्प्ट में जब मेरा सिलेबस भी कंप्लीट नहीं था, तब भी मैं अटेम्प्ट में, ठीक है, अटेम्प्ट आई सेट इन द अटेम्प्ट, मुझे नहीं बैठना चाहिए था उस टाइम अटेम्प्ट में, ठीक है, क्योंकि ये जो फर्स्ट और सेकंड अटेम्प्ट के बीच में 7 से 8 महीने का गैप था। अब एनीवे फर्स्ट अटेम्प्ट का फेलियर आपको जब होता है तो आपको एक अलग ही दुख होता है, ठीक है। ना ही उस टाइम पे एनालाइज कर पाई थी कि इतना ठीक से, क्योंकि वो डीप एनालिसिस आपको ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम पता चलता है कि आप कैसे एनालाइज करना है खुद को, ठीक है। अब सेकंड अटेम्प्ट में नहीं बैठना चाहिए था। नेक्स्ट, अब थर्ड अटेम्प्ट की बात करते हैं, ठीक है। संभाला खुद को, और थर्ड अटेम्प्ट के लिए अब यहाँ पे पूरा 1 साल था, और पढ़ा भी जैसे जो हमारी स्ट्रेटजी है उसके अकॉर्डिंग चले भी। बट द थिंग इज कि थर्ड अटेम्प्ट में जब प्रीलिम्स का पैटर्न ही पूरा चेंज हो गया था, ठीक है, पेयर 1 पेयर 2 के क्वेश्चन, वो एक ऐसा ओवरहोल था, और जिसको देख के एग्जाम में ही आई गिव अप ऑन माई सेल्फ कि इस बार तो नहीं होगा। अब जब 4th अटेम्प्ट की बात है आती है, ठीक है, 2024 में जो ये था, जब मैंने यहाँ पे प्लान बी के लिए मेजरली फोकस किया, तो ये जो अटेम्प्ट है वो स्किप कर देना चाहिए था। बट द थिंग इज कि हमें नहीं पता होता जब हम उस फेज में होते हैं। अभी मैं अगर खुद को इंट्रोस्पेक्ट कर रही हूँ तो अभी मुझे लगता है कि वो जो मैं हर बार वो मैं लो फेज होता था, मुझे लगता है वो गलत था। क्यों? क्योंकि बिना आप खुद को एनालाइज किए, विदाउट सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, हाउ कैन यू कर्स योर सेल्फ कि यू आर नॉट एबल टू स्टडी, यू आर नॉट डूइंग वेल इन लाइफ। सो दैट इज वाई अगर आपको भी लो फेस आपका चल रहा है, या फिर आप लो फील कर रहे हो जस्ट बिकॉज यू आर नॉट एबल टू परफॉर्म दैट वेल इन दिस एग्जाम, सो व्हाट यू नीडेड इज सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। अब सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना क्यों जरूरी है? क्योंकि जब तक हमें पता नहीं चलेगा कि हमारा रीजन क्या है हमारा फेल होने का एग्जाम में, तब तक हमारी एफिशिएंसी उस लेवल पे नहीं पहुंचेगी जो compete करने के भी लायक हो इस एग्जाम में। That is why self introspection is very necessary. I hope you could learn something from these videos. So lastly, I will say one thing, that save your attempt. If you are not ready, you are definitely and legally you are required to, you can backstep from the exam, and then again next year आप अच्छे से तैयारी करके आइए और फिर अपना एग्जाम दीजिए, ताकि आप एक कंपटीशन लेवल पे स्टैंड भी कर पाए, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड।